गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज फिर से कंटिन्यू करेंगे द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फोर कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स 1 बताइए स्टूडेंट्स, बताइए। You should know this. Complex 1 is NADH dehydrogenase complex. Complex 1 is NADH dehydrogenase complex. Okay. Complex 2 बताइए। Complex 2 is called as succinate dehydrogenase complex, right? Okay. Complex 3 is called as, yes, बताइए बच्चों। Complex 3 is called as cytochrome BC1 complex. Okay. And complex 4 बताइए। आपने नहीं बताया तो मैं बताऊंगी। Okay. Complex 4 is called as cytochrome AA3 complex। इन 4 कॉम्प्लेक्सेस के बावजूद RATC में और क्या प्रेजेंट होता है? 2 more components are present in RATC. What are these? These are mobile carriers. Which are these mobile carriers? One is cytochrome C. One mobile carrier is cytochrome C, and this cytochrome is situated कहाँ होता है बताइए? Cytochrome C is a mobile carrier present in between complex 2 and complex 3, right? And the next mobile carrier that is tell me. Sorry, cytochrome C is the mobile carrier present in between complex 3 and complex 4, और complex 2 and complex 3 के बीच क्या प्रेजेंट होता है? ubiquinone. It is also called as coenzyme Q. ठीक है, इन सब कंपोनेंट्स को मिलकर क्या बनता है? RETC. ठीक है। द अल्टीमेट एम ऑफ रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का अल्टीमेट एम क्या है? टू जनरेट एनर्जी मीन्स ATPs, right? Everyone of us know that RETC is situated in mitochondria. RETC is situated in mitochondria, and in mitochondria ATP generation takes place. This ATP generation, where the main ATP generation is carried in respiratory electron transport system, where the main ATP generation is carried in RETC. Through RETC, main ATP generation is carried in mitochondria. Okay, got the point? Yes, you got the point. Just I revised the topic from previous video. इतना आपको पता था सर। ओके, सो अब आगे देखिए। अब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये 4 कॉम्प्लेक्सेस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है। जैसे हमें पता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में 4 कॉम्प्लेक्सेस लोकेटेड होते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये 4 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इनका
अरेंजमेंट कैसे होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द, नोट डाउन कर लीजिए, दीज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, which are the electron carriers, or these are the electron transport system, or we can say carriers, electron carriers. Okay, so all these electron carriers are arranged in inner mitochondrial membrane, inner mitochondrial membrane, according to their increasing redox potential. Got the point? Yes. How these electron carriers are arranged in inner mitochondrial membrane. These electron carriers are arranged in inner mitochondrial membrane according to their increasing redox potential. According to their increasing redox potential. अब बताइए बच्चों, what is meant by redox? What is meant by redox? हाँ बताइए, हमने पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है कहीं तो पॉइंट. What is meant by redox? Redox word stands for oxidation reduction reactions, right? Oxidation reduction reactions. आपको पता है what is oxidation? Oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron. Okay, या फिर क्या कहेंगे हम in other terms, loss of hydrogen or gain of hydrogen is called as reduction. ठीक है. So now come to our point, what is meant by redox potential? redox का मीनिंग आपको समझ गया, ठीक है. redox का मतलब आपको समझ गया, ठीक है. tendency to lose electron is called as oxidation, tendency to gain electron is called as reduction. Okay, now what is meant by oxidation reduction potential is, ये है जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, ये 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स या कॉम्प्लेक्सेस जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सिचुएटेड होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन देने की और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कैसे है, ठीक है. सो रेडॉक्स पोटेंशियल कम है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लेने या देने की टेंडेंसी कम है, ठीक है. रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, माने इलेक्ट्रॉन लेने या देने की टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है. सो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सिचुएटेड होते हैं और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस यह कैरियर्स उनके इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज किए हुए होते हैं. माने कोई भी कॉम्प्लेक्स कहीं भी प्लेस नहीं है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है. उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, और कौन सा सीक्वेंस होता है? दीज electron carriers of transport system, members of electron transport system are arranged according to their increasing redox potential. ठीक है. माने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का जो मेंबर है, सपोज दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, पहले फर्स्ट मेंबर अरेंज रहेगा, फिर सेकेंड मेम्ब्रेन रहेगा, फिर थर्ड मेंबर रहेगा, और फिर फोर्थ मेंबर रहेगा, ठीक है. मेम्ब्रेन के अंदर समझो ये हमारा मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये 4 कॉम्प्लेक्सेस अरेंज है, ठीक है. सो पहले का रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कम है,
एज कंपेयर टू नेक्स्ट वन। सेकेंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ये कंपेरेटिवली ज्यादा है पहले वाले से, ठीक है। थर्ड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ये और ज्यादा है सेकेंड से, और फोर्थ का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल और ज्यादा है प्रीवियस वन से, ठीक है। सो इस तरह ये अरेंज किए होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल। ओके, गॉट द पॉइंट? नाउ अब बताइए ये NADH और FADH कहाँ जनरेट हो रहे हैं सेल के अंदर? ड्यूरिंग विच प्रोसेस NADH and FADH are get formed? This NADH and FADH are formed during, yes, tell me, during glycolysis and tricarboxylic acid cycle, या फिर हम उसे क्या कहेंगे? Krebs cycle. Okay, okay, listen here. NADH और FADH ये कहाँ जनरेट हो रहे हैं? NADH and FADH are get generated during glycolysis and during Krebs cycle. During Krebs cycle. Okay. So glycolysis में और Krebs cycle में ये जो जनरेट हो रहे हैं, so mostly NADH acts as hydrogen carrier, mostly NADH, mostly NAD acts as hydrogen carrier. In very few reaction, FAD acts as hydrogen carrier. In very few reactions, FAD acts as हाइड्रोजन कैरियर, ठीक है। सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन निकाला जाता है, सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन निकाला जाता है, और ये सबस्ट्रेट से जो हाइड्रोजन निकाला जाता है, हाइड्रोजन निकालने के बाद उसे फर्स्टली कौन एक्सेप्ट करेगा? NAD एक्सेप्ट करेगा। कुछ रिएक्शंस में, काफी कम रिएक्शंस में FAD उस हाइड्रोजन को लेगा। ओके, सो जनरली NAD accepts the hydrogen from the substrate and get converted into NADH plus H plus, ठीक है। अब ये दो बार H plus के बजाय शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, हम लिख सकते हैं NADH2, ठीक है। नाउ देखो ये NAD जो है, NAD ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? NADH फॉर्म हो रहा है मैंने, ऑफ कोर्स NAD इज reduced to NADH plus H plus. This is the correct way to write NADH plus H plus. Okay, so जब सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन निकाला जाता है ड्यूरिंग डिफरेंट रिएक्शंस, सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन निकाल रहा है मैंने, सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? यस, सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है। सबस्ट्रेट से जो हाइड्रोजन निकलता है उसे फर्स्टली कौन एक्सेप्ट करता है? NAD एक्सेप्ट करता है, एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, यस, जो इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? हाइड्रोजन कौन दे रहा है? सबस्ट्रेट दे रहा है। तो सबस्ट्रेट क्या हुआ हमारा? ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड? ऑफ कोर्स ऑक्सीडाइज्ड substrate, and NADH is reduced. Okay, this reduced form is get formed, right? ठीक है।
So this is the oxidized form, this is reduced form. Now the positions are reversed, oxidized and reduced. ठीक है. So NAD ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ and results in formation of NADH2. Now NADH2 ये क्या करता है, अपने साथ दो हाइड्रोजन आइटम लेके जाता है. वन हाइड्रोजन आइटम मीन्स व्हाट, वन हाइड्रोजन स्टैंड्स फॉर वन हाइड्रोजन इज इक्वल टू, यस, वन प्रोटॉन प्लस वन इलेक्ट्रॉन, राइट. वन हाइड्रोजन मीन्स वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सबस्ट्रेट में से हाइड्रोजन निकल रहा है, माने क्या निकल रहा है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. ठीक है. इसी तरह से नाउ ये NADH2 जो फॉर्म होता है, ये NADH2 रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करता है. क्यों करता है, क्योंकि इस हाइड्रोजन से क्या प्रोड्यूस करना है, ATP प्रोड्यूस करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करना है. वही तो अल्टीमेट एम है हमारे RETC का, वही तो अल्टीमेट एम है, टू जनरेट ATPs, टू जनरेट एनर्जी, राइट. सो लिसन, अब क्या होगा, ये NADH ये कहाँ जाएगा, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. अब रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें ये है कॉम्प्लेक्स वन. कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स वन आपको पता है, ठीक है. कॉम्प्लेक्स वन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ होते हैं, ubiquinone, also called as coenzyme Q. Complex 2, complex 2 is situated somewhere here. It also transfer its electron to ubiquinone. Complex 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों भी अपने इलेक्ट्रॉन किसे ट्रांसफर करते हैं, अपने हाइड्रोजन एटम किसे ट्रांसफर करते हैं, दैट इज यूबिक्विनोन को. यूबिक्विनोन से नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स 3. कॉम्प्लेक्स 3, राइट. कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गोज टू कॉम्प्लेक्स 4, राइट. और हम कुछ मिस कर रहे हैं इसमें का, या ऑफ कोर्स वी आर मिसिंग हियर द मोबाइल कैरियर्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में कौन सा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, दैट इज द यूबिक्विनोन, राइट. एंड इन बिटवीन complex 3 and complex 4, cytochrome C is the mobile electron carrier. complex 1 माने आपको पता है बच्चों, yes, NADH dehydrogenase. Okay, NADH dehydrogenase. complex 2 is succinate dehydrogenase, right. Complex 3 is cytochrome BC1 complex, cytochrome BC1 complex, and complex 4 cytochrome A3 complex. ठीक है. सो ये हमें पता है. अब देखिए, जो सबस्ट्रेट के पास से हाइड्रोजन लेके NADH आता है, NADH2 आता है, वो अपने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किसे देगा, RETC में जाएगा और किसे देगा, ऑफ कोर्स टू NADH डिहाइड्रोजनेज. ठीक है. NADH को डिहाइड्रोजनेट करने वाला कॉम्प्लेक्स, दैट इज NADH डिहाइड्रोजनेज. ठीक है. ये अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को ट्रांसफर करेगा. अपने इलेक्ट्रॉन्स माने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, क्या, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, माने अपने हाइड्रोजन एटम किसे ट्रांसफर कर रहा है, ये NADH जा रहा है बच्चों टू कॉम्प्लेक्स 1, और खुद के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों भी, माने हाइड्रोजन एटम
ये खुद का किसे दे रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 को दे रहा है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजनेज, जो NADH में से हाइड्रोजन रिमूव करता है, डिहाइड्रोजनेज। ओके, सो यहाँ पर हाइड्रोजन NADH का निकाला जाता है और क्या फॉर्म होगा, यस टेल मी, NADH से NAD फॉर्म होगा, राइट, गॉट द पॉइंट। ठीक है, यहाँ आ गया हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन अपने, हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन के साथ 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये किसे ट्रांसफर कर रहा है, यूबिक्विनोन को, यूबिक्विनोन को। अब यूबिक्विनोन क्या हो जाएगा, यूबिक्विनोन, ये पहले क्या था, ऑक्सीडाइज था, अब यूबिक्विनोन H, हाइड्रोजन एटम इसके पास आ गया, राइट। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 2 is called as succinate dehydrogenase complex. Complex 2 is called as succinate dehydrogenase complex. This succinate dehydrogenase complex, to this FADH2 transfers its proton and electron to complex 2. That complex is called as succinate dehydrogenase complex. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स माने ये FADH2 कहाँ जनरेट होता है, हमें पता है स्टूडेंट्स, FADH2 कहाँ जनरेट हुआ था, यस बताइए, ट्राइकार्बोक्सिलिक, राइट, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट। ठीक है, वहां पर FAD से FADH2 फॉर्म होता है। ठीक है, FAD से FADH2 फॉर्म होता है और FADH2 लाकर खुद के प्रोटॉन कहाँ देता है, RETC के अंदर देता है। खुद के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ देता है, वो RETC में देता है। अब RETC में यह FADH2 आकर कॉम्प्लेक्स 2 के पास आता है। ये कॉम्प्लेक्स 1 को खुद के इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स नहीं दे सकता, वो किसे आके देगा, FADH2 खुद के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आकर सिर्फ कॉम्प्लेक्स 2 के पास ही देगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 इज NADH डिहाइड्रोजनेज, मीन्स इट कैन नॉट बी FADH डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, सिर्फ NADH से ही ये हाइड्रोजन एटम ले सकता है। FADH2 से हाइड्रोजन लेने वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स 2। ओके, सो सिर्फ कॉम्प्लेक्स 2 दैट इज कॉल्ड एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स दैट टेक आउट the proton and electron from this FADH2. So FADH2 का कन्वर्जन किस में हुआ, FAD में हुआ, राइट, FAD में हुआ। अब जो हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव हुए वो आगे कॉम्प्लेक्स 2 किसे देता है, यूबिक्विनोन को देता है। किसे देता है, अपने हाइड्रोजन एटम यूबिक्विनोन को देता है। ठीक है, सो इस तरह से NADH2 या फिर FADH2 के रास्ते, मीन्स देर आर 2 ways to transfer electron by NADH2 way और by FADH2 way। ठीक है, और इस तरह से प्रोटॉन या तो कॉम्प्लेक्स 1 यूबिक्विनोन, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 यह पाथ ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, NADH2 से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कहाँ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स यूबिक्विनोन, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाएंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स FADH2 के थ्रू आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन FADH2 के थ्रू आते हैं, वो कौन से रास्ते से RETC में एंटर होते हैं, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 2। दे विल नॉट गो फॉर कॉम्प्लेक्स 1। They starts their journey in RETC via complex 2, ubiquinone, complex 3 and complex 4. Got the point? Clear? बच्चों समझ गए आपको? ठीक है, RETC में एंटर होने के 2 रास्ते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स 1 से एंटर होइए या फिर कॉम्प्लेक्स 2 से एंटर होइए। जो कॉम्प्लेक्स 1 से एंटर होते हैं कौन हो सकता है, NADH2 से, जिनके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आए हैं। NADH2 वो कॉम्प्लेक्स 1 के पास आएगा और फिर अपने हाइड्रोजन को
यूबिक्विनोन को देगा, यूबिक्विनोन से कॉम्प्लेक्स 3 को देगा और कॉम्प्लेक्स 4 तक जाएगा, ठीक है। और जो FADH2 के थ्रू आते हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 के पास नहीं जाएंगे, उनकी एंट्री यहां से होती है, ठीक है। FADH2 माने कॉम्प्लेक्स 2 से यूबिक्विनोन वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन आगे कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का पाथ समझ में आया, लिख लीजिए। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन RETC दैट इज NADH2 से अगर आता है तो कॉम्प्लेक्स, हाँ बताइए, कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन से यस साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1 से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम AA3 और साइटोक्रोम AA3 से फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। अगर FADH2 के थ्रू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उनका पाथ क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स 2 टू यूबिक्विनोन टू साइटोक्रोम BC1 टू साइटोक्रोम C टू साइटोक्रोम AA3 टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन। ओके, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में हमने क्या बताया, 1 और 3 के बीच क्या प्रेजेंट है, यूबिक्विनोन। 2 और 3 के बीच क्या प्रेजेंट है, यूबिक्विनोन। ओके, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का पाथ रहेगा, ठीक, समझ में आया। नाउ अब देखिए एटीपी जनरेशन, हमारा अल्टीमेट एम क्या था RATC का, एटीपी जनरेशन। एटीपी जनरेटिंग साइट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, द फर्स्ट एटीपी जनरेटिंग साइट इज प्रेजेंट इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 एंड यूबिक्विनोन, इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 एंड यूबिक्विनोन, यहाँ एटीपी जनरेट होता है। सेकेंड एटीपी जनरेटिंग साइट इज इन बिटवीन साइटोक्रोम BC1, यहाँ सेकेंड एटीपी जनरेट होता है। और थर्ड साइट ऑफ एटीपी जनरेशन इज इन बिटवीन साइटोक्रोम AA3. The ATPs get formed. The ATP formation takes place by reaction of ADP with inorganic phosphate. Reaction of ADP plus inorganic phosphate or PI. Okay, and here also ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इस तरह से रिएक्शन होती है और एटीपी फॉर्मेशन होता है। अब देखिए एटीपी फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, फॉर एटीपी फॉर्मेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, फॉर एटीपी फॉर्मेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब एटीपी फॉर्मेशन के लिए एनर्जी लगती है, माने एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ एडीपी विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो एडीपी की रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों का रिएक्शन होने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, यस, दिस एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन के पास जंप करता है या जाता है, वह अपनी एनर्जी कुछ एनर्जी रिलीज करता है, कुछ अमाउंट में एनर्जी अपनी रिलीज करता है। सो फर्स्ट रिलीज ऑफ एनर्जी by the electron transfer takes place in between complex 1 and यूबिक्विनोन, ठीक है। पहली बार इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कहाँ लूज कर रहा है, जब वो कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन के पास जाता है तो वो अपनी कुछ एनर्जी रिलीज करता है, लूज करता है, ठीक है। ड्यूरिंग ईच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
is get depleted, the energy of electron is get depleted, कम होती जाती है हर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब वन से आता है यूबिक्विनोन के पास, यूबिक्विनोन से साइटोक्रोम Bc1 के पास, साइटोक्रोम Bc1 से A3 के पास, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हर जंप में वो खुद की एनर्जी क्या होती है उसकी कम होते जाती है, हर बार कम होती है। सो पहली बार उसकी एनर्जी वो कहाँ रिलीज करता है, कहाँ कम होती है, दैट इज ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स 1, इट्स कॉम्प्लेक्स 1 टू यूबिक्विनोन। यहाँ पर पहली बार इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता है, और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो लूज हो रही है, रिलीज हो रही है, उसका सदुपयोग सेल किसमें करती है? हाँ बच्चों बताइए, उसका सदुपयोग सेल उस एनर्जी का सदुपयोग एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रिएक्शन के लिए यूज करती है, जिससे कि a powerful energy rich component that is ATP is get formed, right? Second time इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कहाँ रिलीज करता है या लूज करता है? अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम किसके पास आ गए? यूबिक्विनोन के पास आ गए। यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ जाएंगे? यस बताइए, साइटोक्रोम Bc1 कॉम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम Bc1 कॉम्प्लेक्स के पास जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो पहले वो साइटोक्रोम B के पास जाएगा, साइटोक्रोम B से C1 के पास इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता है। फिर से सेल ने क्या किया है? इस लॉस्ट एनर्जी का सदुपयोग करके सेकेंड एटीपी फॉर्मेशन किया है, राइट? गॉट द पॉइंट। और यहां से साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन आगे कहा जा रहा है? साइटोक्रोम C के पास। इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया? साइटोक्रोम C के पास। और साइटोक्रोम C ने यह इलेक्ट्रॉन को आया तो आगे थ्रो कर दिया टुवर्ड्स साइटोक्रोम A, towards cytochrome A, and from cytochrome A the electron moves towards cytochrome A3. Okay, in between cytochrome A and A3, electron loses its energy, and this energy is utilized by the cell for the formation of, yes, ATP. और इस तरह से बच्चों जब NADH के थ्रू इलेक्ट्रॉन RATC में एंटर होता है, इस चेन में एंटर होता है, तो कितने ATPs फॉर्म होंगे? ऑफ कोर्स 3 ATPs फॉर्म होते हैं। NADH के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं तो 3 ATPs जनरेट होते हैं, राइट? मगर जब इलेक्ट्रॉन्स FADH के थ्रू आते हैं, FADH2 के थ्रू आते हैं, माने कॉम्प्लेक्स 2 से एंटर होगा वो, सो कॉम्प्लेक्स 2 से एंटर होगा तो बताइए इसकी फर्स्ट एटीपी जनरेटिंग साइट जो है मिस हो गई। कॉम्प्लेक्स 2 कहाँ है? आफ्टर कॉम्प्लेक्स 2 इज सिचुएटेड आफ्टर द फर्स्ट एटीपी जनरेटिंग साइट। फर्स्ट एटीपी जनरेशन साइट के बाद कॉम्प्लेक्स 2 प्रेजेंट है, और जो FADH2 के थ्रू इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इसलिए सिर्फ 2 ATPs ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। सो ज्यादा फायदा किसके साथ है? हमारा सेल का ज्यादा फायदा किसके साथ है? ऑफ कोर्स NADH2 के साथ। व्हेन NAD acts as proton acceptor, hydrogen acceptor, then 3 ATPs are get formed, and with FAD only 2 ATPs are get formed, ठीक है? So FADH2 के साथ 2 ATPs and NADH2 के साथ yes 3 ATPs are get formed. Okay, got the point? ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यह एटीपी फॉर्मेशन किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एटीपी फॉर्मेशन किस तरह से होता है, यह प्रोसेस दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कैसा होता है, कैसे होता है, यह हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।